relationship between Einstein coefficients. So at thermal equilibrium, the number of upward transition, that is a transition from the lower energy state to the higher energy state, is equal to number of downward transition. ठीक है, as a number of upward transition, इसका number means absorptions, means the total energy is absorbed when the atom go from the ground state to the higher state and is equal to the amount of energy that will be released in form of spontaneous emission as well as in the form of the stimulated emission. जितने एनर्जी अब्सॉर्ब किया उतना एनर्जी क्या करेगा बच्चों, रिलीज करेगा. तो हमारी लेजर के केस में हमें एनर्जी जो रिलीज एमिशन कराना है वो बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन कराना है. तभी हम ये आइंस्टाइन का रिलेशनशिप, हम जो अब यहाँ पे जो आइंस्टाइन के कोएफिशिएंट उनका मतलब रिलेशनशिप को कैलकुलेट करें. हमें चाहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज more as compared to with the probability of spontaneous emission. तो यहाँ से हमें number of about तो stimulated absorption का क्या होगा, that is basically B12 Einstein coefficient of stimulated absorption multiplied by that is the number of atom in the ground state U. ये हमने कैलकुलेट कर रखा है. ठीक है, V12 N1 UV is equal to number of downward transition in case of spontaneous emission में A21 N2. Spontaneous emission किस पे डिपेंड करती है, number of atom in the higher state, and A21 is the Einstein coefficient of spontaneous emission plus B21 N2 energy density. अब ये U वाली टर्म इस वाली टर्म को इस पर लेके आओ, B12 N1 माइनस B21 N2 और UV को यहां से U न्यू को यहां पे हमने कांस्टेंट है, that is equal to A21 N2. ठीक है, यहां से हमारे पास एनर्जी डेंसिटी कितना आया, A21 N2 upon B12 N1 minus B21 N2. ठीक है, अब इसको और एक अच्छे से फॉर्म में लिख ले, A21 upon B12 N1 upon N2 minus B21. इसको हम और जनरलाइज फॉर्म में लिख दें, A21 upon B21 that is B12 upon B21 and 1 upon N2 minus 1. It is the equation number 1. तो टोटल इसको हम और अच्छे से फॉर्म में लिख लें, that is the energy density UV is equal to A21 B21 upon B12 B21 and 1 upon N2 minus 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं. अब बात करते हैं at thermal equilibrium according to Planck. According to the Planck hypothesis, total energy density of any photon, that is unit, that is equal to 8 pi h nu q upon
सी क्यू ई एच न्यू बाई के टी माइनस वन. That is equation number 2. That's a well-known Planck hypothesis. That is the energy density of any photon of particular frequency nu is 8 pi h nu q c q e h nu upon kt. K is the Boltzmann constant and T is your h nu. Understand? Now, take equation. Now, in case of equation 1, we have considered what is n1 upon n2. N1 upon n2 is the number of atoms in the ground state upon the number of atom in the higher state. ठीक है? तो number of ground state means that is n1 and this is n2 and this is energy E1 and this is the energy E2. Amount of energy h nu आएगा बच्चों और E2 minus E1 is equal to h nu. So, according to the Boltzmann distribution law, this n1 upon n2, this n1 upon n2 is equal to E delta E by KT. K is the Boltzmann constant, T is the temperature. यहाँ पे हम n1 upon n2 कितना होगा? E delta E कितना है? H nu by KT. ठीक है, तो यहाँ पे हम n1 upon n2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे n1 upon n2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं E h nu by KT. सिंपल सा मतलब है कि एटम्स किस तरह से n1 और n2 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये बोल्ट्जमैन ने दिया, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने दिया n1 upon n2 E del E by KT. ठीक है बच्चों, ये बहुत सिंपल है. अंडरस्टैंड? अब इक्वेशन 1 और 2 में हम कंपैरिजन करें तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ B12 अपॉन B21 कितना हो गया? 1. आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन अपॉन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इज इक्वल टू 1. एक तो ये रिलेशन हो गया. अब यहां से हम बात करते हैं A21 अपॉन B2. इसको कंपेयर करेंगे. यहां से B12 देखिए यहाँ पे 1 है नहीं, E h nu के प्रकार यहाँ पे 1 है. E h nu के साथ यहाँ पे ये 1 है, तो हमारे पास ये टोटल जो टर्म है ये 1 वो कितना है? A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू 8 पाई h nu q अपॉन c. ये हमारा हो गया बच्चों टोटल relationship between the Einstein coefficient of stimulated emission upon the Einstein coefficient of stimulated emission upon the Einstein coefficient of stimulated absorption. ठीक है, ये spontaneous emission हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? B21 क्या हो गया? That is the stimulated emission. तो spontaneous emission एंड द स्टिमुलेटेड एमिशन के बीच का रेशियो में आप ये सारा कांस्टेंट है, तो टोटल न्यू क्यू कितना हो गया? 3. तो हमारे पास टोटल A21 आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन अपॉन B21 इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. मतलब कि हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट ऑफ spontaneous emission will be dominated. So higher frequency के लिए जो higher frequency होगी तो उसमें spontaneous emission जो है वो dominate होगी. इसका मतलब कि हमें ये लेजर के लिए suitable नहीं है. तो हमें डिजाइनिंग में ध्यान रखना है कि B21 जो हो वो ज्यादा हो as compared to A2. ठीक है, इससे पता चल गया कि हायर जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतने ही स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो कोएफिशिएंट है वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता है. ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं
spontaneous emission upon rate of stimulated emission. That is basically A21 upon rate of stimulated emission कितने हैं बच्चों? B21 मल्टी UV. यहाँ हमने कर, यहाँ पे N2 आएगा, यहाँ पे N2 आएगा, यहाँ पे ये N2 है बच्चों, N2 से ये N2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. That is equal to rate of spontaneous emission. अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे rate of stimulated emission. तो A21 अपॉन B21 तो कितना था? 8 पाई h nu q अपॉन CQ, और UV कितना था? 8 पाई h nu की एनर्जी डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर दी इक्वेशन 1 में. दैट इज 8 पाई h nu अपॉन CQ, और ये EH nu बाई KT माइनस 1. ठीक है, यहां से टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो A21 अपॉन B21 rate of spontaneous emission upon the rate of stimulated emission. That is basically EH nu by KT minus 1. K is the Boltzmann constant. ठीक है, अब ये छोटा सा हम ये इसको हम इस तरह से लिख ले, ये पूरा टोटल जो है ये इस तरह से. अब हम रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर केस लेते हैं. एग्जांपल को और अच्छे से आपको समझ आएगा कि यदि टेम्परेचर 10⁻³ डिग्री केल्विन, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और K जो है दैट इज 1.34 इंटू 10 की माइनस that is basically 23 जूल पर केल्विन. ठीक है, अब इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे A21 वाले में, जो ये स्टार इक्वेशन हम इस लिख लें. इस स्टार इक्वेशन इसको फिर से हम लिखे यहाँ पे A21 अपॉन B12 एनर्जी डेंसिटी U nu is equal to EH nu by KT minus 1. इसको इक्वेशन स्टार से नोट कर. अब रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन अपॉन रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, यहां से पुट कर दे तो यहां से हम H nu by KT यहां से निकालें. ठीक है, H nu by KT, तो H यहाँ पे 6.63 into 10 की माइनस 34, और न्यू कितना हो गया? C अपॉन लैम्डा. न्यू जो हमारे पास आ गया C अपॉन लैम्डा. तो यहाँ पे 3 into 10 की 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जूल केल्विन और ये मीटर पर सेकेंड बच्चों, अपॉन लैम्डा इज 6000 10 की माइनस 10. ठीक है, H nu by KT हमने यहां पे कर दिया. अब इसके बाद that will be upon KT. K हमारे पास हो गया 1.38 अप्रोक्सीमेट 8 है into 10 की माइनस 23 जूल पर केल्विन. T is the 10 to the power 3 केल्विन. तो यहां से जब हम नोट डाउन करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो आएगी 23. आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको. और EH nu by KT माइनस 1 जो आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू द 10 to raise to power 10. जब हम इसको
23 यहाँ पे एच न्यू बाई के टी की जगह 23 पुट कर देंगे ई यहाँ पे एच न्यू बाई के टी में 23 ई की 23 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 10 टू रेज टू पावर 10। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि रेट ऑफ B12 rate of spontaneous emission upon rate of stimulated emission is equal to 10 की रेज़ टू 10। इसका मतलब ये होगा कि ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी 6000 ओमस्ट्रॉन्ग में जो है वो प्रोबेबिलिटी या रेट ऑफ stimulated emission सॉरी रेट ऑफ spontaneous emission is more as compared to the rate of stimulated emission। तो इसका मतलब है कि ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी के लिए ये सुटेबल, तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जो वो बढ़ता जाएगा। तो हमारा पर्पस यहाँ क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन के रेट को बढ़ाना। तो ऑप्टिकल जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो ये डिजाइनिंग के लिए ऑलरेडी हेल्पफुल है। हमें ये पता चल गया कि हम जो लेजर डिजाइन कर रहे हैं ये क्या है, वो लेजर में स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है एज कंपेयर टू द स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो डोमिनेंट कौन सा चाहिए लेजर के लिए, वो चाहिए हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है बच्चों, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप बिल्कुल मतलब बेसिक मैथ यूज हुआ है, तो इसी तरह से ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।